Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 24th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols because this coronavirus is still not over. The schools have opened from 16 for classes 9 to 12, but still, and हो सकता है in near future other classes might also open, but still we have to take all the precautions. सारी जगह खुल गई, स्कूल्स खुल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस एकदम ख़त्म हो गया. अभी भी केसेस आ रहे हैं, people are still getting infected with this virus, so we have to be very very careful. अभी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ओके, सो फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. जैसा आपके पेरेंट्स जो भी आपको फॉलो करने को बोलते हैं, सब चीज़ फॉलो करोगे. कीप योर सेल्फ सेफ एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी. इन चैप्टर नंबर 8, दैट इज I'm sorry children, this is not chapter number 9, this is chapter number 8, okay? This is 8. So in this chapter, that is working with numbers till 100. In this chapter, इसमें हमने previous class में क्या पढ़ा था? We have done ascending order. Previous class में हमने ascending order पढ़ा, ठीक है? Ascending का मतलब क्या होता है? Ascending means ऊपर जाना, ठीक है? ये हमने previous chapter में भी पढ़ा था. The only difference was कि उस चैप्टर में हमने 50 तक के नंबर्स के साथ किया था. Now we are working with numbers from 51 to 100. मतलब अभी हमें 1 से लेकर 100 तक की पूरी हमने काउंटिंग कर ली. इसमें से कहीं से भी कोई भी नंबर हम अभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अभी हमें 51 से 100 के बीच के नंबर्स ही लेने हैं. हम उसके पहले के नंबर्स भी ले सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव learn till number 100. I'm sure पहले से भी सबको आता होगा. So ascending order we have done number before, we have done number after, we have done number or numbers between. अगर if we have to write just one number, अगर सिर्फ एक नंबर लिखना है, so that is number between. And if we have to write more than one number, that is if we have to write two numbers, then it is numbers between, ठीक है? So in the previous class we have done ascending order. Ascend करना मतलब जैसे मैंने बहुत बार बताया, to go upstairs. Ascending means going upstairs, ठीक है? तो जब हम ऊपर जाते हैं अगर, तो हमें नीचे भी आना होता है. सीढ़ी चढ़ करके आप छत पे जाते हो या सीढ़ी चढ़ के कहीं भी फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, सेकंड फ्लोर पे जाते हो, तो देन यू हैव टू कम डाउन ऑल्सो. नीचे भी हमें आना ही होता है. तो सीढ़ी जब हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, और जब हम नीचे आते हैं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना असेंडिंग ऑर्डर है और सीढ़ी से नीचे आना डिसेंडिंग ऑर्डर है, ओके? असेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था. इन असेंडिंग ऑर्डर व्हाट डू वी डू? वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है? जो भी नंबर दिए हुए हैं, वॉट एवर नंबर्स आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, we arrange the numbers from smallest to greatest, and in descending order we arrange the numbers from greatest to smallest. Descending order में हम greatest to smallest में numbers को arrange करते हैं, ओके? जैसे अगर steps पे है, suppose previous chapter में जैसे हमने ये भी किया था कि arrange the numbers from 25 to 31 in ascending order. So now here we know that we have to start from 25 and we have to go up to 31. या descending order में write the numbers from 47 to 42 in descending order. So we know that we have to start from 47 and हमें 42 तक नीचे आना है. अगर randomly number दिए हुए हैं, okay, suppose numbers given are 52, 98, 16, 41 and 36, okay? Now we have to arrange these numbers in ascending order. Ascending order मतलब steps पे 1, 2, 3, 4, 5. So I will make 5 steps. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है? ये 5 steps बन गई. अभी हमें इन numbers को we have to arrange in ascending order. That means starting from the smallest we have to go till the
ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर तक जाना है। अभी नंबर्स को हाउ डू वी कंपेयर द नंबर्स? वी कंपेयर द टेंस प्लेस। नंबर्स के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं? वी कंपेयर द टेंस प्लेस, ठीक है ना। टेंस प्लेस दैट इज हियर 5, 9, टेंस प्लेस दैट मीन्स द डिजिट एट टेंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस बोलने से मेरा मतलब है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो 5 टेंस, 9 टेंस, 1 10, 4 टेंस एंड 3 टेंस, ठीक है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट 16 इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज ओनली 1 10 इज देयर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे? 16, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स वी आर going up. Ascending order is represented by this up arrow. Okay. Now after this 1 10, then 5 9 4 3. तो 1 10 के बाद क्या आएगा? The number with 3 tens. So यहाँ पे क्या जाएगा? 36. Next इसके बाद क्या आएगा? The number with 4 tens, that is 41. यहाँ पे क्या जाएगा? 41. Then number with 5 tens, so 52. And finally lastly 98, ठीक है। So this is arranging the numbers in ascending order. Descending order में हम क्या करेंगे? We will come down, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ascending order में हम यहाँ से ऐसे ऐसे गए, descending order में क्या है? This is ascending order. In descending order we are coming down. इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 98 है, 98 के बाद हम कहाँ आएंगे? 52, 52 से नेक्स्ट है 41, देन वी विल कम टू 36 एंड 16, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ से दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हुआ असेंडिंग एंड यहाँ से ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो अभी तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आई एम श्योर इट इज क्लियर टू एवरीवन कि असेंडिंग ऑर्डर माने नीचे से ऊपर जाना एंड असेंडिंग डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, ओके। सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 93. In old books, if it is old edition, then 93, and if it is new edition, then it is 94, okay. So ascending or descending order. We have already done ascending order. Now today we will be doing descending order. ठीक है ना? Ascending order तो हमने previous class में किया था. Now today we will be doing descending order. Okay? The topic is ascending or descending order. A S C E N D I N G. Let me take another marker. A-S-C-E-N-D-I-N-G, ascending, or D-E-S-C-E-N-D-I-N-G, descending order, okay. Ascending or descending order. Now the question is, write the numbers, write the NUMBERS numbers in DESCENDING, descending ORDER. Write the numbers in descending order, okay. And descending order is always represented by this down arrow. Descending order को हम इस down arrow से represent करते हैं. That means we are coming down, okay. Now first is 88, 58, 62, 70 and 75, ठीक है। And as I told you, we always place comma. टू नंबर्स के बीच में हम हमेशा कॉमर्स उनको सेपरेट करते हैं. दिस इज टू शो दैट द नंबर्स आर सेपरेट. अगर आप बिना कॉमा के लिखते जाओगे तो इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग, ठीक है. इट मे बी कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट नंबर.
तो इसीलिए हम कॉमा लगाते हैं, वी सेपरेट द नंबर्स विथ कॉमा, ठीक है। सो 88, 58, 62, 70, 75, whenever you write numbers like this, ascending या descending order में numbers arrange करते हो तो numbers के बीच में कॉमा ज़रूर लगाओगे, ठीक है। Now descending order में करना है तो first we have to see which number is the greatest. That means we have to start with the greatest number. So 88, 58, 62, 70, 75. 8 tens, 5 tens, 6 tens, 7 tens and 7 tens. So obviously first number कौन सा होगा? First number would be number with 8 tens. जिस नंबर में सबसे ज़्यादा टेंस होंगे वो फर्स्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। फर्स्ट नंबर से मेरा मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 88 में 8 टेंस है, दैट मीन्स रेस्ट बाकी सब में कम टेंस है, तो 88 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो वी विल फर्स्ट राइट 88। नेक्स्ट क्या होगा? 7 tens, the number with 7 tens. Now 70 and 75. There are two numbers with 7 tens. ठीक है, 2 numbers हैं जिसमें कि 7 tens हैं. There are 2 numbers with 7 tens. तो जब दो numbers में number of tens same होता है तो हम क्या करते हैं? Then we compare the ones place. अभी ones place में क्या है? 70 and 75. 0 ones and 5 ones. तो विच इज़ मोर? 0 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 5 इज़ मोर। तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 75। इसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा? 70। देन वी आर लेफ्ट विथ 58 एंड 62। ठीक है, 58 एंड 62। नाउ 62 दैट इज 6 टेंस एंड 52 दैट इज 5 टेंस। तो विच नंबर इज ग्रेटर? जिसमें ज़्यादा टेंस है दैट इज 62। सो 62 एंड देन लास्ट नंबर इज 58। ओके, सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 88, 75, 70, 62 एंड 58। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज 45, 49, 45, 49, 68, 66 and 55. Okay, now let us arrange these 45, 49, 68, 66 and 55. ठीक है, अभी इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट नंबर क्या होगा? वी हैव 4 tens, 4 tens, 6 tens, 6 tens and 5 tens। ठीक है, सो देयर आर 2 numbers with 4 tens, 2 numbers with 6 tens and 1 number with 5 tens। तो जिस नंबर में दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंस इज 6, सबसे ज़्यादा टेंस क्या है? 6 है। सो दैट मीन्स जिस नंबर में 6 टेंस होंगे वो नंबर सबसे बड़ा होगा। नाउ अभी क्या है? यहाँ पे वी हैव 2 numbers. Here we have 2 numbers with 6 tens, 68 and 66. ठीक है, both the numbers have 6 tens. इस केस में हम क्या करते हैं? We move to the ones place. ठीक है, हम कहाँ मूव करते हैं? ones place पे। 8 ones and 6 ones. Which is more? 8 ones is more. So that means the number with 8 ones, that means 6 tens and 8 ones ज़्यादा होगा, बड़ा नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 68। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 68 के बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी 66। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 66। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा फिर? नंबर विथ 5 tens, दैट इज 55। Now we are left with 2 numbers 45 and 49। ठीक है, both the numbers are 4 tens। दोनों numbers में क्या है? 4 tens है। So we will check the ones place। जब दोनों numbers में same है तो हम क्या करेंगे? हम ones place को check करेंगे। Now one number has 5 ones and another number has 9 ones। ठीक है ना, तो 45 and 49, 9 ज़्यादा है 5 से, so that means द नंबर विथ 4 tens and 9 ones। जिस नंबर में 4 tens और 9 ones है वो नंबर बड़ा होगा। तो दैट मीन्स 49 इज ग्रेटर
और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 45, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 45, ठीक। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज 68, 66, 55, 49, 45. Okay. Now third is 0, 96, 99, 63 and 95. Okay, the numbers are 0, 96, 99, 63 and 95. So 96, 99, 63, 95. 0 तो 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 0 सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। नाउ द नंबर विथ 9 टेंस वो सबसे बड़ा होगा। नाउ हियर वी हैव 3 numbers with 9 tens, 96, 99 and 95. Okay, we have 3 numbers with 9 tens. अभी तीनों नंबर्स में नंबर ऑफ टेंस सेम है, सो वी मूव ऑन टू द वंस। हम वंस चेक करेंगे। 6 वंस, यहाँ पे क्या है 6 वंस, 9 वंस एंड 5 वंस। सो आउट ऑफ 6, 9 एंड 5 सबसे बड़ा क्या है 9 है, सो दैट मीन्स द नंबर विथ 9 टेंस एंड 9 वंस। जिस नंबर में 9 टेंस और 9 वंस है वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 99। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिस नंबर में 5 वंस हैं, ठीक है, 9 टेंस एंड 5 वंस। 99, 95, सॉरी 96 इज ऑल्सो देयर, सो द नंबर विथ 9 टेंस एंड 6 वंस। नेक्स्ट आएगा 9 टेंस एंड 6 वंस, दैट इज 96। एंड थर्ड क्या आएगा 95, 9 टेंस एंड 5 वंस 95। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 numbers 63 and 0. तो 63 that is number with 63 तो यहीं पे आएगा 6 tens and 3 ones and last number will be 0. 0 means nothing, तो 0 तो लास्ट हो गई, ठीक है ना। कोई भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर काउंटिंग नंबर्स इसीलिए हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। ओके, अच्छा, राइट दीज 3, 2 more are there, ठीक है। आप ये 3 लिखो अपनी बुक में, उसके बाद 2 more are there एंड आफ्टर दैट इफ टाइम परमिट्स तो मैं कुछ और करवाऊंगी फॉर प्रैक्टिस, दैट इज योर नोटबुक वर्क। ओके, तो इसको लिखो आप। मैथ्स तो वैसे आप मेरे साथ साथ अलॉन्ग विथ मी यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है ना। ये तो आपको अपने आप करना चाहिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, अगर नहीं पूरा हुआ है। मैं इधर फिर से साइड में आ जा रही हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो एंड देन यू कैन डू इट लेटर। ओके, सो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वी विल बी डूइंग नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 44, 55, 75, 65 and 70. Okay, these are the 5 numbers 44, 55, 75, 65 and 70. अभी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, वी विल फर्स्ट चेक द टेंस प्लेस। सबसे पहले हम टेंस प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे। तो 4 टेंस, 5 टेंस, 7 टेंस, 6 टेंस and 7 tens. Now here we have obviously 4 tens है, 5 tens है, 7 tens, 6 tens and 7 tens. So the number with 7 tens सबसे greatest होगा, वो greatest number होगा। Now we have 2 numbers with 7 tens, 75 and 70. Both the numbers have 7 tens. एक में क्या है 5 ones and one has got 0 ones. ठीक है, तो जिस नंबर में 5 ones होंगे that number would be greater, 7 tens and 5 ones, ठीक है, और 7 tens and 0 ones। तो जिस नंबर में 5 ones होंगे वो नंबर बड़ा होगा, तो 7 tens and 5 ones that is 75। नेक्स्ट क्या होगा 75 के बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी
70 ठीक है ना, 70 फिर क्या होगा, आफ्टर दिस वी हैव 44, 55 एंड 65. सो ऑब्वियसली 6 टेंस तो 65 होगा नेक्स्ट नंबर वुड बी 65 एंड उसके बाद क्या होगा 75, 70, 65 then 55 and 44. So next 55 and उसके बाद 44. ठीक है, so the correct sequence of numbers in descending order is 75, 70, 65, 55 and 44. This is the correct sequence of numbers in descending order. Okay, now next is 22, 35, 72, 44 and 65. Okay, 22, 35, 72, 44, 65. We have to arrange these in descending order. इन्हें हमें descending order में arrange करना है. Now we have numbers with 2 tens, 3 tens, 7 tens, 4 tens and 6 tens. ठीक है, so सबसे बड़ा 2 tens है, 3 tens है, 7 tens है, 4 tens है and 6 tens. So here all the numbers have different tens, different number of tens. सारे numbers में अलग अलग 10 है, so कोई confusion नहीं है. सबसे ज़्यादा tens किस में है 72, that is 7 tens, so first number होगा 72. Then next क्या होगा 72 के बाद next number would be 65, 6, 5, 65. Then उसके बाद next क्या होगा 44. ठीक है, 44. नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा 35 एंड लास्ट क्या जाएगा 22. When all the numbers have different number of tens, जब सारे numbers में number of tens जो है वो अलग अलग होते हैं तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं. When 2 or more than 2 numbers have same number of tens, है ना, अगर 2 या 2 से ज़्यादा numbers में same number of tens है, in that case we have to compare the digits at ones place. अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में नंबर ऑफ टेंस सेम है तो उस केस में हमें वंस प्लेस के डिजिट को कंपेयर करना होता है. ठीक है, क्लियर? सो नाउ राइट दीज टू एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू सम नोटबुक वर्क. ये दो आप लोग को, इसके बाद में कुछ नोटबुक वर्क दूंगी दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके, these are from your book. अब इसके बाद I'll give you 3 or 4 which you have to do in your notebook. अब इसको इरेज कर दूँ. If you wish to take the screenshot, you can take it. चलो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ. अब जो मैं करने जा रही हूँ दिस इज नॉट इन योर बुक, ये आपकी बुक में नहीं है. ठीक है, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ अपनी मर्जी से. The question remains the same. अच्छा, क्वेश्चन में अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाला दोनों देती हूँ. ओके, ASCENDING. राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, मैं ऐसे दे रही हूँ नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में 39, 20, 57, 72 and 53. ठीक है, one is this one and another is 87, 93, 98, 84, 86. ठीक है, now arrange these two in ascending order. ये 2 को ascending order में करना है. This you have to do in your notebook. ठीक है, यहाँ मैंने notebook वर्क नहीं लिखा है but do this in your notebook. मैं नीचे लिख दे रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, do these in your maths
की नोटबुक में करना है। नाउ 39, 20, 57, 72 and 53 वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आएगा, 3 tens, 2 tens, 5 tens, 7 tens, 5 tens। सबसे पहला नंबर क्या होगा 20, बिकॉज इसमें सबसे कम टेंस है। नेक्स्ट क्या होगा 20 के बाद नेक्स्ट होगा 39, 57, 72, 53। ठीक है, सो दैट मीन्स नेक्स्ट हो गया 39। नाउ वी हैव टू नंबर्स विथ 5 tens, 57 and 53। टू नंबर्स में 5 tens है, सो वी मूव ऑन टू द वंस प्लेस। 7 ones and 3 ones। ठीक है, तो जिसमें कम वंस होंगे वो नंबर छोटा होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ना। तो 3 ones and 7 ones, so this is smaller, so first would be 53, then 57 and last क्या आ जाएगा 72। ओके, नेक्स्ट ये है 87, 93, 98, 84, 86। Now here we have two numbers with 9 tens and 3 numbers with 8 tens। अभी जिसमें 8 tens है उससे हम असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। सो 87, 84 and 86 देयर आर 3 नंबर्स। सो जिस नंबर में वन स्पेस पे सबसे कम वंस होंगे, जिस प्लेस में वन स्पेस पे सबसे कम डिजिट होगी, सबसे छोटी डिजिट होगी, दैट मीन्स सबसे कम वंस होंगे, दैट नंबर वुड बी द स्मॉलेस्ट। सो 7 ones, 4 ones and 6 ones। तो सबसे कम क्या है 4 ones, तो 84। नेक्स्ट क्या जाएगा 86 एंड उसके बाद क्या आएगा 87। नाउ वी हैव टू नंबर्स विथ 9 ones, 93 and 98। सो बोथ द नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ टेंस। हम वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 3 ones and 8 ones। सो 93 and then 98। okay, fine। so this is the arrangement in ascending order। ये आपको नोटबुक में करना है, इसको आप you can take a screenshot and after this we will be doing 2 for descending order also। ठीक है, if you wish you can take the screenshot। आई होप सबने कर लिया। अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ, सबने लिख लिया आई होप। चलो अभी नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज डाउन एरो। अरेंज द नंबर्स इन DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नाउ let me write the numbers। The numbers are 62, 43, 30, 55 and 29। ठीक है, नहीं ये नहीं, let me change this। 89, 95, 92, 98 and 87 and one is descending order na 73, 100, 51, 49 and 80। ओके, ये भी आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है। ये मैं अब नहीं बताऊंगी, इसके मैं आंसर्स नहीं लिखूंगी। यू राइट द आंसर्स ऑन योर ओन। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबको समझ में आ गया कि हाउ डू वी राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, इसको आप करोगे अपने आप एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लासेस का पर्पस ही यही है कि आपको जो भी डाउट है यू क्लियर योर डाउट्स इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो दीज टू यू हैव टू, असेंडिंग ऑर्डर वाले तो मैंने कर दिए थे बट डिसेंडिंग ऑर्डर मैं नहीं करूँगी। सो आई होप चिल्ड्रन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज क्लियर टू यू एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग
ग्रेटेस्ट नंबर एंड मतलब नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को सेपरेट करना, अलग निकालना, एंड आउट ऑफ द गिवन नंबर्स टेक आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, so I hope you have written these this you have to do in your maths notebook. Okay, so children, that is all for the day. आज मैं यहीं पे क्लास एंड करूँगी. In case of any doubt, ask me in the online class. Okay, so thank you children.